Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is on beta oxidation of fatty acids. This process takes place in mitochondrial matrix. In which organs? In two main organs, in liver and in muscles. For complete understanding of this reaction, I would like to say watch video till end. Okay, from where fatty acids come from? Fatty acids come from lipolysis. Lipolysis is also called tag degradation or fat mobilization, which takes place under which conditions? In starvation, prolonged fasting, when insulin level is low. Normally, insulin inhibits lipolysis, and if there is prolonged fasting or starvation condition and body is deprived of energy and there is increased demand of ATP, then lipolysis will takes place, and lipolysis से आपके पास glycerol और free fatty acids बनते हैं. Lipolysis का main enzyme कौन सा है? Because free fatty acids are normally stored in the form of TAG, triacylglycerides. So lipolysis is TAG breakdown. A TAG breakdown takes place in the presence of enzyme called tag lipase. This enzyme is present in capillary walls of adipocytes. तो टैग डिग्रेडेशन से आपके पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं दैट आर ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स. दिस ग्लिसरॉल एंटर्स blood and from blood it moves to liver where it undergoes phosphorylation in the presence of enzyme glycerol kinase to form glycerol 3-phosphate. Then that glycerol 3-phosphate can enter gluconeogenesis or glycolysis in any reaction depending upon body demand. And the free fatty acids, these free fatty acids are utilized for energy production, and the process through which free fatty acids are utilized for energy production, this process is called beta oxidation. The beta oxidation process is basically further subdivided into three main things. First is activation, second entrance into mitochondrial matrix, and then the four steps of beta oxidation that take place in mitochondrial matrix, and the organs involved are liver and muscle. बेसिकली फ्री फैटी एसिड्स को आप एज सच इसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते. फर्स्ट दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू देयर एक्टिव स्टेट, एंड द एक्टिव स्टेट इज कॉल्ड फैटी एसाइल CoA. ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, दिस इज ऑफ फैटी एसिड्स. ये देखिए आपके पास फंक्शनल कार्बन है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है. फंक्शनल कार्बन कार्बन नंबर 1 है. इसके साथ जो कार्बन अटैच है दैट इज सेकंड कार्बन, बट इट इज़ कॉल्ड अल्फा कार्बन बिकॉज इट इज़ अटैच टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन. फिर अल्फा के साथ बीटा कार्बन अटैच, बट नंबरिंग के लिहाज से इसको आप कार्बन नंबर 3 बोलोगे. फिर उसके बाद एंड सो ऑन, एंड दिस इज़ अ साइड चेन. अच्छा, अगर अब आपने करवानी है फ्री फैटी एसिड्स की एक्टिवेशन, तो आपने इनको फ्री फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करना है फैटी एसाइल CoA की फॉर्म में. कैसे होती है एक्टिवेशन? के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, फंक्शनल कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप. सल्फर और कोएंजाइम A पार्ट अटैच हो जाए तो आप इसको बोलोगे फ्री फैटी एसिड से फैटी एसाइल CoA की फॉर्मेशन. एंड दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड फैटी एसाइल CoA सिंथेटेज. फैटी एसाइल CoA synthetase enzyme. This enzyme is present in outer mitochondrial membrane, in endoplasmic reticulum and in peroxisomes, where it causes conversion or activation of free fatty acids forming fatty acyl CoA. The second thing is entrance of fatty acyl CoA into mitochondrial matrix. Because coenzyme A part of fatty acyl CoA is unable to cross inner mitochondrial membrane to enter matrix, so there must be a transporter present for transport of fatty acyl into matrix, and the transporter is called carnitine. So the process is called carnitine shuttle mechanism. Carnitine shuttle क्या होता है ये आप देख लें. Here it is outer mitochondrial membrane, this is inner mitochondrial membrane. ये intermembranous space है, साइटोसोल है, और ये mitochondrial matrix है. सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास साइटोसोल में फ्री फैटी एसिड्स की कन्वर्जन इनटू फैटी एसाइल CoA by action of fatty acyl CoA synthetase. Then this fatty acyl CoA simply enters across outer mitochondrial membrane into intermembranous space. Then the CAT enzyme, CAT1, carnitine acyl transferase 1. Carnitine acyl transferase 1 enzyme causes conversion of fatty acyl CoA into fatty acyl carnitine. ठीक है, ये सिंपली क्या करता है, कोएंजाइम A पार्ट को रिप्लेस कर देता है विद कार्निटीन. अब ये जो फैटी एसाइल कार्निटीन है, इट मूव्स अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनटू मैट्रिक्स अक्रॉस अ प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेस. टू बी मोर एक्जैक्ट आप इसका पूरा नाम बोलोगे
एसाइल कार्निटीन कार्निटीन ट्रांसलोकेस, जो कि फैटी एसाइल कार्निटीन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पंप कर रहा है और जो फ्री कार्निटीन है उसको अगेन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में लेके आ रहा है, ताकि ये जो कार्निटीन अगेन है इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फैटी एसाइल को इनटू फैटी एसाइल कार्निटीन, और ये प्रोसेस जो है वो सोन रिपीट होता रहता है। एनीवे फैटी एसाइल कार्निटीन की ट्रांसपोर्ट हो गई अक्रॉस ट्रांसलोकेस इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फिर ये जो फैटी एसाइल कार्निटीन है इसकी अगेन कन्वर्जन आपने करनी है इनटू फैटी एसाइल को ए, बिकॉज दिस फैटी एसाइल कार्निटीन कैन नॉट एंटर बीटा ऑक्सीडेशन, कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2, दिस एंजाइम सिंपली कॉजेज कन्वर्जन ऑफ फैटी एसाइल कार्निटीन इनटू फैटी एसाइल को ए। कोएंजाइम ए पार्ट ऐड हो जाता है और कार्निटीन जो है फ्री कार्निटीन वो रिलीज हो जाती है, एंड दिस फ्री कार्निटीन इज कैरिड इनटू इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस अक्रॉस ट्रांसलोकेस एंजाइम, द सेम ट्रांसलोकेस दैट पम्प्स फैटी एसाइल कार्निटीन इनटू मैट्रिक्स, it moves free carnitine into intermembrane space and makes it available for formation of fatty acyl carnitine. ओके अभी जो फैटी एसाइल कोई आपके पास बन गया, दिस एंटर्स बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन को याद करने के लिए आपने सिर्फ ये 4 लेटर्स आपने याद रखने हैं, DHDT, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, थायोलाइसिस। एज द नेम इंडिकेट्स इट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है तो मतलब इट यूजेस ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम्स, और प्रोडक्ट साइड पे क्या आपके पास बनेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन एक ही बात होती है। तो पहले स्टेप में जब डिहाइड्रोजिनेशन होगी तब भी आपके पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। सेकंड स्टेप है हाइड्रेशन, तो सिंपली वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा। थर्ड स्टेप अगेन है डिहाइड्रोजिनेशन, तो यहाँ पे फिर दोबारा एक रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। और टी स्टैंड्स फॉर थायोलाइसिस, तो सिंपली थायोलिटिक स्प्लिटिंग हो जाएगी और आपके पास एसिटाइल को ए फॉर्मेशन होगी। ये देखें बीटा ऑक्सीडेशन का मेन पर्पस क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन। इट मीन्स कि जो लाइसिस होगी इट इज़ इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, यहाँ से लाइसिस होगी तो आपके पास 2 कार्बन एसिटाइल को ए रिलीज हो जाएगा, और एज इट बिकॉज इट इज़ ऑक्सीडेशन तो आपके पास प्रोडक्ट साइड पे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी बनेंगे। ओके बाकी इसकी जो डिटेल है मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।